landmark show that brought me back into TV when I did not have top 50 made out. Ladies and gentlemen, let's put your hands together for Ekta Kapoor, Joint Managing Director, Balaji Telefilms. Hi everyone. Outside the urban space or delved in relationships with a small town, which I personally thought I didn't know that many people from, say, small towns or Patna or which are B towns, which are like not really small, but they're not towns that I had that much relatability with because I didn't have people or friends from there. So when I decided to do this show, I said I want to get characters with that I am new to, not that I actually know. So I did a bit of research and I molded my story into an area where the rules or the ground rules of people existed in the same place but with different ideologies. So you have these two families, one which is rich, decadent, financially extremely wealthy, in knowledge, in progression, in thinking, extremely poor. They have double standards, different values for their daughters, different values for their sons. They bring up their children with the belief that whatever you do, you're allowed. And simultaneously, we had this other family where the woman was the husband's boss. And they were progressive enough, even though they were a financially not so rich family, that they were okay with that system because at home they were equals. And a girl who's brought up in such a house, when clashes with a man who for no fault of his, but clear bad upbringing, actually thinks that he owns the world. But the beauty of love is that however strange you are, it can make you even stranger. The first thing that it does is that it transforms you. So the story is about these two people who come from very, very different thinking in a world of where crime, where bureaucracy has its own rules. And in that city where everything is allowed, a man realizes that it's important to actually realize your limits because the biggest payback is karma. And the biggest form of karma is usually love. So this is my tribute in a very simple way because it looks like a simple story. It's a character that will bring out its newness to the one thing that only can change you, and that is love. I want the cast up here and Anuj sir here because I'm sure that this show is all because of them. Thank you. Thank you. Fantastically spoken. Thank you very much. And Actually, we were writing and we wrote the girl's name is Purvi and the guy's name was Rajveer. And Rajveer kept on saying and it was sounding very Raja. So at one point, he just said, call him Arjun. So we call him Arjun. And then we realized it became Arjun Purvi. So we're not changing it. So Pavitrishta ended today. So any other show you are planning to come up on CTV? I am, you see, there cannot be any replacement to Pavitrishta. Pavitrishta, for me, is a landmark show that brought me back into TV when I did not have top 50 made out even one slot. And Pavitrishta will always be that landmark show that gave me a second lease of life on television. The last 3 months, 6 months, to continue it, the channel knows that it was the only thing that if they told me, like, come to the channel now, I would reach in 5 minutes because I wanted the show to continue. But some things have to end and it has ended. So
let's not discuss that. सीरियल में कौन सा ऐसा शो है, आई मीन सारे ही आपके जितने भी सीरियल्स रही हैं अभी तक, कौन सा आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? Isn't that a question? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जिंदगी में मेरी शुरुआत, चाहे टीवी की शुरुआत पहले हुई हो, हर किस्म की शुरुआत उससे हुई है। Thank you. When you're planning to direct a serial or I don't have the talent all the time. I have to 2 hours to draw exercise because I put on weight easily. I don't think so. Thank you. ये है पूर्वी, ये है अर्जुन ये है रियल लाइफ में अपर्णा दीक्षित। and he is Navi Bhangu थैंक यू सो मच। from Punjab and I'm from Agra. डिस्ट्रिक्ट जलंधर, नूर महल। मैं इनके कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ। बहुत बार हमने अपने अपने के बारे में बता ऑफ दिया। कोर्स, चलो मैं आपके बारे में बताऊंगा फिर। तो जो अर्जुन है वो बहुत ही दिलदार इंसान है, अपने दिल की सुनता है, किसी को कुछ नहीं समझता। वो बुरा नहीं है दिल का, पर वो ऐसे ही बड़ा हुआ है कि उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ द बेस्ट और वो कुछ भी कर सकता है। लड़कियाँ उसको बहुत पसंद करती हैं, मरती रहती है उसके ऊपर, उसको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और लड़कियाँ अपने आप को लकी समझती है कि ओह अर्जुन ने हमसे बात की, हम बहुत लकी है। और चलो खैर, अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ये पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इनका जो कैरेक्टर है, जो दमदार कैरेक्टर है, जो ऑफ कोर्स हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर है जो रियल लाइफ में लड़कियां दब के रहती हैं, है ना, जवाब नहीं दे पाती हैं। कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो लड़की ये है। और डिसेंट भी है, किस इंसान को कैसे लाइन पे लाना है, भटके हुए को कैसे रास्ता दिखाना है ना, हाँ। मंजिल पे पहुंचाना है, तो वो आपको पूर्वी दिखाएगी, है ना। तो वो पूर्वी का ये कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। जैसे पूर्वी ने कहा कि लड़कियां तो आपको मरती है, तो पूर्वी में ऐसे क्या क्वालिटी देख ली आपने जो ऑफ कोर्स जो मैंने इनके बारे में बताया वही इनके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो अर्जुन को पसंद है, जो हर लड़की में नज़र नहीं आती। वो लड़कियां अर्जुन पे मरती हैं लेकिन अर्जुन पूर्वी पे मरता है ना। तो ये डिफरेंट है कुछ। पूर्वी आपको कैसा लगता चाहिए, आप टीम को कितना पसंद करेंगी आप? एग्जैक्टली जैसे अर्जुन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो हर चीज़ उस लड़के में ना हो, मुझे वैसा लड़का चाहिए। अर्जुन हमने तो आपके बारे में लेकिन हमारा शो तो यही मैसेज देता है कि किसी भी, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ, कुत्ते की पूंछ होती है ना ऐसे टेढ़ी, है ना, तो उसको भी सीधे किया जा सकता है प्यार से। तो ये हमारे शो का सबसे बड़ा मैसेज है कि प्यार, है ना, प्यार हो तो सब कुछ कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए, आप बालाजी से पहले से जुड़ी हुई है, फिर से ये आपके लिए मेन लीड लेके आया है सीरियल, आपके लिए भी, आप भी बालाजी से जुड़ी हुई हैं। जी। तो बालाजी के बारे में और बालाजी और आपका रिश्ता? मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमेशा ऐसे टीवी देखते हैं, और मैंने इतना ऐसे कोई सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, पर जब मैं देखती थी मुझे लगता था अगर करो तो बालाजी में करो, क्योंकि आगरा में तो मुझे लगता था सारे शोज़ बालाजी के ही होते हैं। मुझे और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम ही नहीं पता थे। तो जब मैं यहाँ आई और मैंने बाय लक बालाजी के साथ किया पवित्र रिश्ता, देन मेरी आशिकी तुमसे ही, एंड नाउ मुझे 1 साल हुआ है एक्टिंग करते हुए और मुझे लीड मिला है बालाजी के साथ, एकता मैम के साथ। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूँ, लोगों को मैं बहुत पसंद आऊँ, मैं बहुत मेहनत करूँ, लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आए, उनको वो कनेक्ट कर पाए मुझसे मेरी एक्टिंग से। नवी, आपकी बात की जाए तो आपने पहले भी लीड जी। किया है, काफ़ी समय के बाद आपने री एंट्री की है बालाजी के साथ। जी। आपकी कितनी उम्मीदें हैं? और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक राजकुमारी के साथ काम कर रहा हूँ, एकता कपूर जी के साथ, है ना। तो ये भी हमारी राजकुमारी हैं, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री की चॉप कर सकता है लड़कियों की। नहीं, मैं एकता जी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ प्लीज़। तो मैं उनकी ऑफ कोर्स तारीफ़ कर रहा हूँ, जो एक्चुअल है, जो हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्वीन है ना, प्रिंसेस हैं, जिन्होंने शोज़ की देन ऑडियंस को दी है और इतने अच्छे शोज़ दिए हैं ना, इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं। तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऑफ कोर्स मैं क्वीन के साथ काम कर रहा हूँ, बालाजी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो और अपना मन चाहा कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे बड़ी बात आई थिंक मुझे नहीं लग रहा मेरे लिए कोई हो सकती है। तो
इसलिए हमें लगता है कि लोगों को और बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर से कितने खुश हैं, और हम दोनों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट। लेकिन देखिए हर एक्टर देखिए बहुत सारा काम करता है ना। एक्टर को अलग अलग कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं, वही एक्टर होता है। लेकिन कुछ एक्टर को ऐसा कोई कैरेक्टर करने को मिल जाए जिसकी वो एक तमन्ना होती है, ड्रीम होता है ना, तो मतलब ड्रीम रोल मिल जाए तो सोचो उसको कितने मज़े से करो, मतलब उसकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा बहुत कम होता है, तो ये मेरे साथ हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप। और हमारे शो में जो पूरी कास्ट है वो हर एक इंसान बहुत ही बिल्कुल एक एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है वो कैरेक्टर उन्हीं के लिए लिखा गया है, उनके लिए ही लिखा गया है। और सबसे रियल लाइफ में देखा जाए ऑफ स्क्रीन तो मतलब सबकी केमिस्ट्री ऐसी है कि मतलब एक परिवार जैसे होता है ना, एक फैमिली, वैसा ही है। पूर्वी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं इसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। बहुत अच्छी को एक्टर है, बहुत अच्छी एक्ट बहुत अच्छा है, इनका काम बहुत अच्छा है और लगन से करती हैं, टाइम टू टाइम पहुँचती हैं सेट पे, है ना। तो मतलब बीमार होते हुए भी काम करती हैं। तो ये ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों से पता चलता है कि अपने काम को लेके ये कितनी पंक्चुअल है ना। तो मतलब ये सब चीज़ें मुझे तारीफ़ करने में अभी मज़ा आ रहा है पूर्वी की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बहुत नई हूँ, मुझे बहुत सीखना बाकी है। तो एक ऐसे को एक्टर के साथ काम करते हुए जिसको इतना टाइम हो गया काम करते हुए, वो भी मुझे ऐसे कोई ट्रीट नहीं करते कि अच्छा तुम्हें अभी नहीं आता है तुम सीखो। ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स मी। तो मेरे लिए और कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना की। और हमारे जो एक साथ सीन्स होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं, सीरियसली मज़े आते हैं हमें वो सीन्स करने मज़ा आता है काम करके। चाहे इतना फिर ज़्यादा कि जब नॉर्मल लाइफ में भी हम उन्हीं लाइंस को बोल रहे होते हैं, रिहर्स करने के लिए नहीं, ऐसे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जाते जाते अपने कैरेक्टर में दर्शकों को कुछ कहना वो कहा है कि 16 अक्टूबर से शाम 7 बजे ये दिल सुन रहा है, सोमवार से शनिवार सिर्फ और सिर्फ सोनी के नए चैनल सोनी पल पर देखना मत भूलिएगा। ये बात हम कह देते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और आपको देखना पड़ेगा, आपको पसंद आएगा, ये हमारी गुजारिश है आपके सामने। प्लीज़। थैंक यू।